علم کا دائرہ جو پڑھے لکھے ناظموں میں نام آتا ہے وہی شاداب کا، وہی شاداب صاحب نے بات کہی ہے، تعریف کیا، لیکن ایک بات اس میں سچ یہ ہے کہ میں بجنور کی محبت کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں۔ ہمیشہ میرے شمشاد صاحب جو چیئرمین ہیں، میرے کرم فرما ہیں، اور یہ کہنا چاہیے کہ شاعروں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ پھول چیئرمین سے لے کے اب تک انہوں نے یہ ظاہر ہونے نہیں دیا اپنے شاعروں میں کہ میں اس وقت چیئرمین پھول ہوں یا موجودہ ہوں، ہمیشہ موجود ہے۔ اور بہت کرم فرما یہاں پر نجی آباد سے بھی تشریف لائے عزیز میاں ایک بیٹھے ہوئے ہیں، اور عزیز میاں کے ایک ساتھی ہیں کہان میاں، ابھی انہوں نے کلام پڑھا تو ساتھ رہتے ہیں، اکثر وہ سامعین میں رہتے ہیں، لیکن آج بہت میاں شاعر کی حیثیت سے ہم موجود ہیں تو وہ اچک کے دیکھ رہے ہیں۔ میری ان سے مشورہ یہ ہے کہ وہ بھی 2-4 غزلیں تیار کر لیں تاکہ اسٹیج پہ آ جائیں، ان کو بھی کھانے پینے کا انتظام جو وہ کھا رہے ہیں ان کے دوست ان کو باقاعدہ ملے، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں وہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس مشاعرے کی ایک خاص بات یہ ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں ملکی صاحب کو اور سبھی ان کے دوستوں کو، میرا صاحب کو، کہ اس مشاعرے میں شاعرہ نہیں ہے، شاعرہ اگر شاعرہ کے کامیاب مشاعرہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، ورنہ لوگ شاعرہ کی وجہ سے زیادہ بیٹھتے ہیں، غزلوں کی وجہ سے کم بیٹھتے ہیں۔ عزیز میاں بھی آج شاعری سن رہے ہیں، ماشاءاللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کوئی شاعرہ نہیں، ورنہ حالت یہ چاہتی سے میں سنتا ہوں کہ ایک کیا دیکھا آپ کی جانب، ایک کیا دیکھا آپ کی جانب کے بس، آپ تو آنکھوں سے دل کا جائزہ لے لیں، آپ کو آنکھوں سے دل کا جائزہ لینے لگے، آپ کے جذبات کس قدر احساس ہے، صرف خوشبو سے بھلوں کا ذائقہ لے لیں۔ اور یہ بھی حالت ہے آج کل کے مشورے کی، کیونکہ آج کل جب شاعرہ آتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں جس کو اندر بدل بدل کے پیٹا ہے اس نے مجھ کو سینڈل بدل بدل کے، میں دیکھتا ہوں جس کو اندر بدل بدل کے پیٹا ہے اس نے مجھ کو سینڈل بدل بدل کے، ایڈوانس میری آنٹی ہر ایک مشاعرے میں لاتی ہے ساتھ اپنے اندر بدل بدل کے، لاتی ہے ساتھ اپنے انکل بدل بدل کے۔ آج یہ قومی کھیتی کا مشاعرہ 15 اگست سوتنترتا دیوس کے خوبصورت موقع پر محفل سجائی ہے مرحوم نے، میں بہت ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آج کل ہم لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں 26 جنوری 15 اگست اگر مشاعرے ہوتے رہے اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے دن آزاد دیش کا ہوا تھا 26 جنوری کسے کہتے ہیں، گنتنتر دیوس کسے کہتے ہیں، سوتنترتا دیوس کسے کہتے ہیں۔ ورنہ میرے کوئی دوست ہے پرسوں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سنجاد بھائی ایک بات بتاؤ، میں نے کہا کہ 15 اگست کی نماز کس وقت ہے؟ کہ اس کے باوجود آپ حالات دیکھ رہے ہیں ہمارے، اور ہم لوگ 15 اگست پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ چاروں طرف سے پریشان ہے اور حوصلے ہیں بس، چاروں طرف سے پریشان ہے اور حوصلے ہیں بس، پھر بھی ہم بنا رہے ہیں 15 اگست، ہمیں غدار، ہمیں مسلم ہمیں غدار، ہمیں مجرم ہے، ہم طرف سے ہمیں پہ پابندی، خوف میں ہمیں مرتے ہیں رنگوں میں اور ہماری ہو رہے ہمیں غدار، ہمیں مجرم ہے، ہر طرف سے ہمیں پہ پابندی، خوف میں ہمیں مرتے رنگوں میں اور ہماری ہوئے نسبندی۔ 15 اگست کا یہ خوبصورت ماحول میں 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں کہ وہ نیتا تھا بڑا ماہر تھا رشوت میں گھوٹالے میں، وہ نیتا تھا بڑا ماہر تھا رشوت میں گھوٹالے میں،
मेरी जोरू का भाई था, भरा था झूठ साले में। मेरी जोरू का भाई था, भरा था झूठ साले में। शराबी था, कबाबी था, बड़ा रंगीन मिजाजी था। खुदा बख्शे बहुत सी दुनिया की मरने वाले, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में। और ये भी देखें आप, चार दूसरे मैं आता हूँ विजडॉम को सोचा कि अब सब महफिल है एक नक्शिश के रूप में, तो इस वजह से नया कलाम थोड़ा सा नजर कर दूँ और उसके बाद फिर वो आपके जो लतीफ़ा कोई या शायरी भी चलती रहेगी। चार दूसरे मिलाद फरमाने के अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बात है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बाती है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की ओर अब इशारों पे उनके नाचती है हैदर भाई, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बाती है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। और ये देखें चार रिश्ते के फरिश्ता यूं भी रहा हूँ बेगम से रात दिन, फरिश्ता यूं भी रहा हूँ मैं बेगम से रात दिन। कितना है प्यार पूछने को जिद कर रही है। मैंने कहा था एक दो दिन छीन के मेरा, उस दिन से लेके चाहूँ फरिश्ता यूं भी रहा हूँ मैं बेगम से आजकल। कितना है प्यार पूछने को जिद कर रही है। मैंने कहा था देख लो दिल चीर के मेरा, उस दिन से लेके चाकू मेरे पीछे पड़ी है। और ये चार इसने ताजा और सुने कि पूछा डॉक्टर ने, पूछा ये डॉक्टर ने मियाँ कैसे मर गए। बोली ये बेगम जहर बना मौत का सबब। पूछा ये डॉक्टर ने मियाँ कैसे मर गए, बोली ये बेगम जहर बना मौत का सबब। लेकिन ये कहा कि जिसके छोटे हैं बेशुमार, इनकार शहर खाने से ये कर रहा था। डॉक्टर ने क्या कैसे कर गए, बोली के जहर बना है मौत का सबब। लेकिन ये क्या कि जिस पे छोटे हैं बेशुमार, इनकार शहर खाने से ये कर रहा था जब। और ये भी देखे आज कल का दौर, क्योंकि अभी क्या हुआ के साथ एक बकरीद के मौके पे एक मोहतरमा बैठी थी कपड़े की दुकान पे और सूट मांग रही थी। पैसे वाली थी, मैं भी सोच रहा था मेरा नंबर भी आएगा तो मैं भी कुर्ता पजामा खरीदूंगा। और ये कहे जा रही थी कि अच्छे से अच्छा सूट दिखाएंगे। वो कह रहे थे कैसा सूट चाहिए कि महंगा हो और किसी के पास ना हो, ऐसा हो। उन्होंने साहब जयपुरी सूट, पंजाबी सूट, पाकिस्तानी सूट सारे खोल के डाल रखे थे और पसीने में तब था दुकानदार उससे कह रहे थे और अच्छा दिखाइए, ऐसा दिखाइए कि जो पैसे की चिंता मत कीजिए, बेहतरीन सूट हो। बड़ा परेशान होकर उनसे पूछा कि मोहतरमा ये बताइए कि कैसे सूट चाहिए आपको, कि बस ऐसा चाहिए कि पूरे का पूरा महंगा मेरे पीछे हो। मतलब फिर तो कपड़ ले लो। शादी बिहार का खेल मुकद्दर का है झंझट, शादी बिहार का खेल मुकद्दर का है झंझट। किसकी बददुआ थी मेरे आंगन में आ पड़ी और उसने जो मारी आंख तो ये हादसा हुआ। पत्थर की आंख थी मेरे दामन में, पत्थर की आंख थी, पत्थर की आंख थी मेरे दामन में आ पड़ी। और ये चार इसमें और मुलाकात है कि मेरी दूसरी बीवी पे मुझको एक मस्जिद में जमात आई हुई थी, जो मेरे जमात थे। उन्होंने एक बच्चे को हुक्म दिया, दे देते हैं किसी किसी नकाली लगा देते हैं कि साहब आपको नमाज के बाद भी खड़े होकर कहना है कि सभी हज़रात तशरीफ रखें, इंसान का नमाज के बाद दीन ईमान की बात हो। तो उस बच्चे को ये ड्यूटी दे दी। बच्चा छोटा था, वो उसमें इतना बड़ा जो जुमला था उसे उसने सुना तो उसने एक मन करके एक बार और बता दी कि हज़रत कहले बेटे मैंने ये कह रहा हूँ कि सभी हज़रात तशरीफ रखें और नमाज के बाद दीन ईमान की बात हो। वो घबरा गया, फिर तीसरी बार हिम्मत नहीं, कुछ उसके याद हो गया, कुछ वो सोचा नहीं। अब हाल ये हुआ उसका कि सारी नमाज में वो ये याद करता रहा रुकू में सजदे में सभी हज़रात तशरीफ रखें इंशाअल्लाह नमाज के बाद। अच्छा आधा याद हुआ, कुछ याद हुआ, कुछ नहीं। तो जैसे नमाज को पढ़ा सलाम फेरा गया तो एकदम खड़ा हुआ तेजी से जोर से बोला कि सभी हज़रात तशरीफ रखें
इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। मेरी इस दूसरी बीवी जो है बिल्कुल इसी तरीके से है मरकू भाई, जैसे चाय में एक बिस्किट गिर जाए तो दूसरे बिस्कुट से निकालना। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत चाहिए। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत चाहती है। एक साथ बड़े लालची थे, अपने लड़के को रिश्ते के लिए चले जा रहे थे, उसको समझाते जा रहे थे, शादी यूं नहीं हो पा रही थी कि लालची बहुत थे, और ये समझाते जा रहे थे बेटे देखो मैं रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो एसी मांगना, एसी दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो प्लाट मांगना। परेशान होकर कहने लगे अगर अपनी लड़की दे तो उनकी माँ मांगू। तो ये हालत है। जब उसके बावजूद मैंने उनसे कहा कि आप खामखा रिश्ते के लिए परेशान हो गए, आजकल इंटरनेट इंटरनेट से बड़े रिश्ते शादी होते हैं, लड़की का रिश्ता हो या लड़के का रिश्ता हो, तो आप बिल्कुल उसमें देखें रिश्ता शादी बड़ा अच्छा रिश्ता मिल जाता है, आपने चप्पल खामखा गिरती है, तो यहाँ से 4 तीसरे मिलाकर करें कि आशिकों को मस्ती मुख्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती मुख्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता मुख्तार में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल मिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा, उसको मोबाइल मिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और ये देखने के जब ये ऐसी महफिल चली है तो उसको कलाम आपसे मेरा सब सुन चुके हैं, तो मैं कुछ नया कलाम मैं तस्वीर पेश कर रहा हूँ कि गालिब साहब का गजल है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, उसका एक मिसरा गालिब साहब का, एक मिसरा मेरा, कोई उम्मीद पर नहीं आती, दाल बनती नजर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती, दाल बनती नजर नहीं आती, पहले बेबाक भी वो आती थी, अब किसी बात से नहीं आती, पहले बेबाक भी वो आती थी, अब किसी बात पर नहीं आती, और जब से वो दुल्हन बन के आई है नींद क्यों रात भर नहीं आती, जब से दुल्हन बनकर आई है नींद क्यों रात भर नहीं आती। और ये भी बादशाह जफर साहब का के लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े गया है, एक शेर उनका 3 मिसरे ले ले आप ज्यादा फरमाए, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े गया है, इसकी बड़ी बहरहाल है। और आपके अच्छा ये दरअसल मैं आपके सामने पेश कर दूं कि मैं आजकल का दौर जो है मुशायरों का, वो हालत ये है कि आप लोगों को शायद फोन पर दिखने लगे, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में दिखने लगूं, आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में दिखने लगूं, और सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी, सोचता हूँ खुद को डॉक्टर लिखने लगूं, सोचता हूँ खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। हालत ये भी है कि आजकल पहले ये था कि साथ मुताला कीजिए तो आप अच्छे शायद बनेंगे, मुताले से जो है बहुत मालूमात होती है, लेकिन आजकल लड़कों का नहीं होते, लड़कों का मुताला और चला जाता है, उनके मुताले से मेरे 4 किस्से गए हैं, आप अंदाजा करें। होता मगरूर मुताले पे जो शायर अपने, होता मगरूर मुताले पे जो शायर अपने, वो समझता है सुखन मेरा दोबारा होगा, और जो ख्यालात भी लेता है वो दीवानों से, उसके अशार में उतना ही घोटाला होगा, जो ख्यालात भी लेता है वो दीवानों से, उसके अशार में उतना ही घोटाला होगा। और ये विचार इसमें देख ले कि है महज ख्याल की इज्जत है आपकी, यह है महज ख्याल की इज्जत है आपकी, वैसे तो अहले इल्म करते नहीं है कद्र, वैसे तो अहले इल्म करते नहीं है कद्र, और कैसे जी रहे हो क्या दोनों की जिंदगी, नशे में जॉन एलिया और वैसे नशे में जॉन एलिया और वैसे बशीर पत्र। और ये भी देखे के साथ वो मेहमान जो मेरे घर आए थे उनकी हालत ये रही, लॉकडाउन में फंस के रह गए 15 दिन तक, हालत ये रही के साथ वो भाई ने
पकाने पर हाल ही हो गया, कोई सामने परेशान हो गया, उनको सुबह की दाल की खिचड़ी, दालें मौजूद थी, मूंग की दाल, दाल लौकी, मसूरी की दाल। 15 दिन में दाल खाते हो गए तो सब चांद की तारीख 12 रबी अव्वल नजर शरीफ में मेला लगता है। तो मैंने सोचा आज क्या तारीख है, तो सही अंदाजा नहीं लग रहा था। वाली साहब 8 बता रहे थे, बड़े भाई 10 बता रहे थे, मैं 9 बता रहा था। और जिन्हें दाल खाते 14-15 दिन हो गए थे, तो उनसे आती को मेहमान से मैंने कहा हज़रत आप बताइए आप चांद की क्या तारीख है। कहते चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14। तो ये फिर भी मैंने उनसे, मेरी वाइफ ने काम कर ली ऐसा खिला रहे कि इनके दाल खाते हुए 15 दिन हो गए। मैंने फिर क्या किया है कि अंडे तो मिल रहे हैं, अंडा खरीद खाइए। तो मैंने वही किया कि उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से अंडा मैंने तैयार कराई, उनके सामने पेश की। इस बार मेहमान नवाजी अच्छी हो जाएगी। अंडा करी से उनको एलर्जी थी या डॉक्टर ने मना कर रखा था या एसिडिटी बनती थी, तो वो देख के उनके चेहरे के तासुरात जो बिगड़े, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा नसीब खराब, किस्मत खराब के नहीं, मेरी इच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ से 4 किस्मों को निकाला करे। कंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से विनती कराने से मिला। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल यकीन के ही सब झंझट के बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल यकीन के ही सर पे रख दो हाथ। और एक नज़्म छोटी सी क्योंकि कोई पढ़ता नहीं हूँ, बहुत अच्छा मुझे लगती है, तो आज वो सुनाना चाहूँगा। एक दिन यूं ही मेरी बेगम से झगड़ा हो गया, बात थी वो राज की जिसपे लफड़ा हो गया। एक दिन यूं ही मेरी बेगम से झगड़ा हो गया, बात थी वो राज की जिसपे लफड़ा हो गया। तय ये अहम हो गया, दिन हो कि चाहे रात हो, बात हो जब भी हमारी तो क्या कहने तय ये अहम हो गया, बात हो जब भी हमारी तो लिखित में बात हो। और या तो पर्चेबाजी शादी से पहले की कभी, या फिर से अचानक फिर शुरू अब हो गई। एक दिन जाना था मुझको बॉस के काम से, एक पर्चा लिख दिया बेगम को उनके नाम से। मैंने उसमें ये लिखा, जरा जल्दी जगा देना मुझे, सुबह जब बजने को 6 हो तो उठा देना मुझे। आंख मेरी खुद खुली, डाली जब घड़ी पर नजर, 2 पे की सुई बड़ी, छोटी सुई 8 पर। मैं घबराया और बिस्तर से जब नीचे गिरा, एक पर्चा मुझको मेरे अपने तकिए पर मिला, वो उठाया और उसने लिखा था, ये जनाब अब तो रुक जाएंगे ना, बज रहे हैं 6 जनाब।